Now, I would request our head girl, Tuhina Chaudhary, to come and request our chief guest to step forward and inspect the parade. Leading first, we have the NCC squad, commanded by Cadet Helen Mishra, with their wrist salutes and shout. General salute! Now, we have our rifle leader, we have the Glass House! General salute! along with the vice captain, with their weapons, smiles, and strength in unity. Entering them, we have Vashishta Vice Captain Otis Singh showing enthusiasm and vibrant spirit. Here comes the Vishwamitra House along with the Captain Bhagat Singh at front and the Vice Captain Damshwara, personifying discipline and unity. And finally the Vivekananda House, captained by Imran Singh and the Vice Captain Arun Maran, effecting their perfect harmony. Many of these photos are clicked by fellow engineers. Photography and traveling भी एक passion है. Yes, and now NEP says this, na, you have to experience and then learn. Good morning, good morning. So this was a club activity with church and very School trip and tours भी मैंने Yes, we are going to Nepal this year, class 12, and 9th, 10th is going to Lucknow, to Agra, Jaipur, Kolkata, Udaipur, Jodhpur and Jaisalmer also. Oh yes, I saw They that. have Yes. been there. And कौन से classes के नाम tours? By nights, initially they were taking only 12, and now we started all the classes. The rest of them go for a local trip. Local trips, yes, of course. We also have a counselors club. Now children sometimes feel free to discuss their problems with the peers.
रहा है कि विजय और बलिदान का। मंचाभिमुख सम्मानित मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुराग अग्रवाल एवं डॉक्टर साक्षी अग्रवाल, हमारे विद्यालय की आदरणीय संपोषिका डॉक्टर कृष्णा गुप्ता मैडम, हमारी प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय प्रधानाचार्य अल्पना डे मैडम, प्रभारी वर्ग, शिक्षकगण, विशिष्ट जन एवं अभिभावक जन को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सादर अभिनंदन करना चाहती हूँ आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच प्रयागराज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमें यह बताते हुए गर्व होता है कि आप हमारे विद्यालय के पूरा छात्र भी हैं। हमें आपको देखकर एक सुखद और प्रेरक अनुभूति होती है। आपके साथ आपकी सहधर्मिणी डॉक्टर साक्षी अग्रवाल मैडम, आप महिला रोग विशेषज्ञ हैं। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूँ। वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का वर्णन और निराकरण किए बिना अतीत के गौरव का स्मरण अधूरा है। आज केवल ऐतिहासिक विजय को याद न करके हमें यह सीख भी लेनी है कि भारत के विकास के लिए संवैधानिक मूल्यों के साथ लोकतांत्रिक समता, सौहार्द और भाईचारे की जरूरत है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य और भविष्य के संकटों के बीच स्वराज की नवीन अवधारणा राजनैतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी इत्यादि से जुड़कर एक नए राष्ट्र की पुनर्रचना का बीड़ा उठाना है। अनेकों कष्टों को भोग कर मेरी आजादी हम नए युग के स्वार्थ, लोभ इत्यादि की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। यदि आज सच्चे अर्थों में श्रद्धा प्रकट करनी है तो आजाद और सशक्त भारत के नए प्रतिमान गढ़ने होंगे। यकीनन एक सुंदर और सुखद भविष्य सच्चे देश प्रेमियों की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वतंत्रता का सम्मान, भविष्य को प्रेरणा। वर्ष 2025 स्वतंत्रता दिवस की यात्री अत्यंत उपयुक्त व सार्थक है। अब मैं आग्रह करना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानाचार्य जी से कृपया मंच पर आकर आज के विशेष अवसर पर आमंत्रित अतिथियों से हमारा स्वागत करवाएं। A very good morning to all of you present here and a very, very happy Independence Day. It's indeed a proud moment for our school that we have our alumnus, Dr. Anurag Agarwal, as the chief guest. He told me that I should not be called the chief guest, but today you have the privilege to hold the post and to grace the occasion. Yes, and to inspire the students. We would, after this, request him to be part of regular counseling sessions for students as well, so that you become a role model and a big motivation for them. As we are proud that so many products are being made only in India, we, the people from MPVM, are proud that we are also giving intelligent, wise, not only intelligent, wise doctors and engineers, but as Krishna ma'am always says, we are giving good, sensitive human beings to the society, compassionate people in the society, and this is what we want from our juniors as well. I welcome Dr. Anurag Agarwal, Dr. Sakshi, who is the better half, and she has always supported us also because our teachers, our Group D employees, whenever anybody faces a problem, I always feel free to send them to you. And I feel that I'm sending them to their family member only. I welcome Krishna Madam
She is the head of our institution, our mentor, our guide, and always she is with us. I welcome the parents because without your support, we are not able to do anything for your children. It is because of your support, your encouragement that we think good for the children and we are able to do better for them. I welcome my dear students and teachers on this national festival where we only celebrate the patriotism and the freedom of the nation, but for us, we are proud to say that we are an Indian first. And it is the spirit of nationalism which is within us every day. So without much time that I'll take, I would request the comparers to take forward the program. I must also inform everyone that only class 7, 8 and NCC cadets are sitting here, but our students from classes 1 to 12 are in the classrooms and they are part of the live streaming of the program. So even they are enjoying the program. So it's an initiative that we have taken so that each child is able to celebrate with us. Thank you so much. Thank you, ma'am. United we stand, divided we fall. With this statement, we would like to commence our program with a melodious patriotic group song that forbids us Indians to do any kind of discrimination, be it on the basis of caste, creed, color, religion, or region.
We welcome Shri Ravindra Gupta sir. जातिवाद इत्यादि की कड़वाहट हमारे दिलों से यह गीत पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है। हमारे सेनानियों के इरादों के दीप आपने फिर हमारे दिलों में प्रज्वलित कर दिए। स्वतंत्रता दिवस के उत्साह के साथ जन्माष्टमी के महापर्व का आनंद यह एक सुखद संयोग है जो वर्षों बाद आया है। भले ये दोनों पर्व भिन्न हो, लेकिन संदेश एक ही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धरती के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु ने अपने पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और अनंत लीलाएं रचकर ब्रजमंडल को एक तीर्थ बना दिया। वो लक्ष्मीपति थे पर माखन चुराते। वो संसार को पालने वाले माता यशोदा की गोद में लोरी सुनते सुनते सो जाते थे। वो दुनिया को नचा सकते हैं, लेकिन गोपियों ने छछिया व छाछ के लिए नचा दिया। दुनिया उन्हें प्रार्थना के गीत सुनाती है, पर वह स्वयं माता की फटकार और गोपियों के उल्हाने सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। तो आइए इस दिव्य लीला के साक्षी बने जो युग युगांतर तक अमर रहेगी। हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की। कृष्ण श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
यशस्वी भव पुत्रा चिरञ्जीवी भव तिष्ठन्तु। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, मैं देवकी नंदन कृष्ण। आयुष्मान भव कृष्ण, हमारे गुरुकुल में स्वागत है तुम्हारा। मैं धन्य हुआ प्रभु। गुरुदेव, मैं आपके सानिध्य और आपके संरक्षण में इस सांदीपनि आश्रम में विद्या प्राप्ति हेतु आया हूँ। कृपया मुझे अनुग्रहित करें। अवश्य कृष्ण, क्यों नहीं, ये तो इस गुरुकुल का सौभाग्य है। जाओ, विद्यार्थियों से मिलो और अपने सखा को ढूंढो। इसके साथ तुम्हें उसकी कुटिया में रहना है। जो आज्ञा गुरुदेव। सही किया, सही किया। मित्र, क्या मैं मिल आ सकता हूँ? अवश्य, किंतु मैं तो आपका मित्र नहीं, फिर यह संबोधन क्यों? सखे, मैं कृष्ण आज ही इस गुरुकुल में आया हूँ। गुरुदेव की आज्ञानुसार मुझे ही अपने मित्र और रहने के स्थान का चुनाव करना था। किंतु आप मेरे पास क्यों आए हैं? ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपको ही अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। कृपया मेरी मित्रता स्वीकार करें। कृष्ण, मित्रता वह संबंध है जो बराबर वालों के मध्य होती है। मैं तो ठहरा एक गरीब ब्राह्मण और तुम तो किसी उच्च कुल के संपन्न बालक लगते हो। फिर हमारी मित्रता कैसे संभव होगी? सखे, मैं वचन देता हूँ कि जब भी हमारी मित्रता धर्म के निर्वहन की बात आएगी तो मैं उसे हम दोनों की तरफ से निभाऊंगा। मैं आपको इस ऋण से मुक्त करता हूँ। अब तो आप मेरे मित्र बनेंगे ना? अवश्य कृष्ण, मेरे अहोभाग्य। चलो चले। चलो। मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मधुवारी, कृष्ण कृष्ण तुम्हारा है हर पल भूल के सुने सारी। महाराज की पावन लीला तीनों लोक से न्यारी, रास रचाए दो लोक में कान्हा कुंज बिहारी। कृष्ण है सुमिरन जप है राधा राधा राधा।
नाचे सब रस रचाए राधा रास बिहारी What a delightful performance, filled with the devotion, grace, and the magic of Krishna's eternal tales. Every moment reflected the spirit of Lord himself. Up next, we have a presentation that reflects one of India's greatest gifts to the world, yoga. Not just a form of exercise, but a path to harmony between body, mind, and soul. Its power to heal, balance, and strengthen embodies the spirit of unity. So, let us witness this graceful display of postures and breathing that celebrates both health and heritage.
आजादी क्या जिसका संरक्षण ही नहीं किया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान के नन्हे सितारे अपनी भाव भंगिमा से हम सबको आजादी का महत्व समझाने आ रहे हैं। तो आइए इनका उत्साहवर्धन करें। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहे, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। A truly amazing performance. वीर भूमि पर उदित एक चिंगारी जो बलिदान की यज्ञ वेदी पर एक पवित्र ज्वाला बन गई, जिसका आँच और ताप आज भी हम महसूस कर पा रहे हैं। जंजीरों से बंधे हुए शेर और उन पर ताकत आजमाते पालतू पशु, बंदिश में शहंशाह और शहंशाहों की गद्दी पर बैठे सियार। तो आइए इतिहास के पन्नों को पढ़ें और देखें कि ये अमर नायक की अमर गाथा का। स्वराज महानायक संभाजी, जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं अपितु मृत्यु का वर्ण कर वीरता की अमर गाथा रची। देख जिसे खुद मौत डरा था, मौत का ये दावा था, दक्खन भूमि को नाज है जिस पर, वो शेर शिवाजी का छाप। सन 1657 पुरंदर किले की ऊंचाइयों में एक वीर बालक ने जन्म लिया। संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र।
उनका जन्म इतिहास में एक नया अध्याय बना। बाल्यकाल से लेकर के उनके योद्धा संदेश तक का सफर छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्र छाया में कटा और समृद्ध हुआ। परंतु एक दिन ऐसा आया जो स्वराज को गम की गहराइयों में ले गया। 3 अप्रैल 1680 रायगढ़ किले में स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु पिता की विरासत संभालने वाला उत्तराधिकारी तैयार था। उन्होंने दुश्मनों के आक्रमणकारी मंसूबों को ललकारते हुए चुनौती दी, यह कहते हुए कि शेर तो अब नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा था। आप हमारे मित्र हैं, हमारे सेवक हैं, आप हमारी परछाई हैं चंद्रकांत। हम नमक हैं महाराज, जितनी जहां आवश्यकता हो इस्तेमाल कर लीजिए। आपको शत्रु के घाव पर बनाएंगे चंद्रकांत। अद्भुत महाराज, अद्भुत। संगमेश्वर में हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, किंतु आपके मुख पर भय का एकमात्र भाव भी नहीं। महाराज, भोसले परिवार का हर एक पुरुष एक पहाड़ी तूफान है, जिसकी गति को स्वयं पर्वत भी नहीं बदल सकता, तो उसका भला कोई क्या बिगाड़ेगा? हमें और हमारी प्रजा को इसी क्षण की प्रतीक्षा की। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे इस हिंदवी स्वराज को आप हमसे बेहतर समझते हैं। महाराज, हम आप भी समझते हैं और हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। जब विश्वास हो सा तो युद्ध लड़े क्यों? सेना बहुत भयभीत है राजे। यदि कोई अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी की हद तक जाने को तैयार है, तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। ऐसे में यदि आपको शत्रु की हर एक बात भी माननी पड़ जाए, तो उस दुविधा को भी हम स्वीकार करते हैं। किंतु एक बात है जो हमारी समझ के बाहर, ये मराठे अपनी जान के बारे में कब से सोचने लगे? हाँ, हम वो मराठा जिन्होंने जब भी अपनी जान का बलिदान दिया है, स्वराज्य के लिए दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दिया है, जो मस्तक सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करते हो, वो दुश्मन के सामने झुकेंगे। हम मराठा हैं, मराठा। और स्वराज्य का ये सिंहासन लाखों मराठाओं के त्याग और बलिदान से बना है। ये एक इंसान की इच्छा नहीं, अभी तू हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। ये हिंदवी स्वराज्य भव्य ईश्वर की इच्छा। समय आ गया, अब वार होगा।
महादेव की सौगंध, स्वराज के खिलाफ खड़े होने वाली हर एक सेना, हर एक शत्रु को जला के राख कर देंगे। अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश को तोड़ेंगे, हर छल को तोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके छोड़ेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पार्वती पतये कथा ये है महाराज मेरे की, हिंदू का अमर उजाला था। पान पे कर दिए प्राण न्यौछावर, लहू में जिसके ज्वाला था। रणधीर वीर तूफान चीर मेरे छत्रपति महाराज संभाजी। बोले अतीत शत्रु अधीर जब करते थे महाराज संभाजी। घर घर जय भर ज्वाला, अंदर हवा से घोड़े उड़ते थे। मृत्यु का तीता डवरण में जब मर्द मराठा लड़ते थे। चिंगार सनातन की गूंजी और ध्वज केसरी लहरे थे। ढोल ढोल थे घोर गाँव और लहू से लथपथ जाए थे। महाराज मेरे है छत्रपति महाराज संभाजी। रक्त रवानी रथों में ऐसे रण में तब से आगे लगे। चेहरे पे भय का भाव नहीं, चाहे आंखों में प्रकाश नहीं। धन से बढ़कर है धर्म, सदा झूठने से गहरा भाव नहीं। स्वराज्य में जीना बाण नहीं है, मान से बढ़कर प्राण नहीं। पूरे दुनिया वीरों की चिता का या कहीं सत्कार नहीं। महाराज मेरे है छत्रपति महाराज संभाजी। रक्त रवानी रथों में ऐसे रण में तब से आगे लगे। सन 1689 में संगमेश्वर के निकट छत्रपति संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश शत्रुओं के घेरे में आकर बंदी बनाए गए। कई विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने न आत्मसमर्पण किया और न वो अपने कर्तव्य से पीछे हटे। संभाजी महाराज ने पीड़ा को शौर्य से सहा और कवि कलश ने अपने अंतिम शब्दों में प्रेम व समर्पण की अमिट छाप छोड़ दी। घोड़े तो तलवारें, बाश तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। सेवक का आखिरी फैसला स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके दुश्मनों के घाव पे लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। और इस प्रकार स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, किंतु आत्मसम्मान, सांस्कृतिक गौरव एवं आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। छत्रपति संभाजी महाराज ने
इन मूल्यों के लिए अपना जीवन अर्पित किया, पर कभी भी इनसे समझौता नहीं किया। और अब इसी विरासत को स्मरण करते हुए हम अपने कार्यक्रम का समापन एक नृत्य प्रस्तुति के साथ करेंगे। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, हार करे जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर आज हमें है कुछ करना, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार तो बस कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। That was a wonderful portrayal of the glorious history of India. When a woman rises, a nation shines. When her courage speaks, history rewinds. India's soil has always been blessed with the daughters who stood tall, fearless and blessed. From the battlefields to the freedom struggle, from poetry to politics, women have always participated in act of independence and freedom. Until today, they are rising high. From Jhansi to Kitur, from freedom songs to Rashtrapati Bhavan's floor, our women have risen and will rise. Maharani Lakshmi Bai, the flame of freedom, Sarojini Naidu, the first women governor of India, and Draupadi Murmu, a beacon of hope today. Now, our Mahila Swavalamban Kendra will be presenting an enactment showing the contribution of women in the rise of our country. सभागार में विराजमान विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। शक्ति स्वरूपा नारी, भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के संघर्ष की एक लंबी कहानी है। उस कहानी का हर एक किरदार पूजनीय व अनुकरणीय है। अंग्रेज अत्याचारियों के षड्यंत्र में जकड़ी हमारी प्यारी भारत माता को मुक्त कराने में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, किंतु इस रक्त रंजित इतिहास में चूल्हे चौके दहलीजों के दायरे पार करती भूदेवियों के
तलवार तो किसी ने कलम की धार से अपने अपने हिस्से का योगदान दिया। एक ओर भारत की मुक्ति का संघर्ष तो दूसरी ओर बंधन से मुक्त होती नारियां। आइए उन अमर नायिकाओं को हम हृदय से याद करते हैं। सोची बड़ी है, गौरव गाथा पवित्र है, ये भारत की सेनानियों का पावन चरित्र है। एक से बढ़कर एक, नाम गिनाऊं किसका किसका, खुद ही देखो एक एक में दुर्गा, काली, सरस्वती का रूप है चिपका। महारानी लक्ष्मीबाई भारत भूमि की छत्राणी थी, शैशव से ही रणबाला व मर्दानी थी। ममता को गोद में लेकर शस्त्रों से सुसज्जित तरुणाई थी, उसके सम्मुख अंग्रेजों ने भी मुंह की खाई थी। रथ के दोनों पहियों के बल रथ बढ़ता है, जिसके बिना अधूरी लगती है स्वराज की गाथा। आज की चर्चा में एक नाम और शामिल करते हैं। आइए भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की बात करते हैं। नए दौर के नए भारत की एक अनोखी शिल्पकारी, अथक प्रयास, कड़ी मेहनत से बनी पहली महिला राज्यपाल। भारत को आजाद देखना मेरा सपना है और हम सब मिलकर इसको जरूर पूरा करेंगे। अब भी यदि निराशा है तो देखो महामहिम के पद को, वो दर्पण बन जाएगा जब देखोगी उनमें खुद को। हालात उन्हें ना हरा पाया, विश्वास उनका ना टिक पाया। कस्तूरी बाग जंगल की संसद भवन में गमक उठी। मित्रों, आइए स्वागत करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। कर्म हमारा साथी है, हालात इसी से सुधरेंगे। खुद को नियति के हाथों का बेजान खिलौना नहीं बनने देंगे। इतिहास साक्षी है नारी क्षमता का, अब स्थान नहीं विषमता का। अपने हालात विकट हो या राष्ट्र पर संकट हो, हम मिलकर कदम बढ़ाएंगे। विश्वास करो खुद की शक्ति पर, ये बादल पल भर में छट जाएंगे। धन्यवाद। अद्भुत यह प्रस्तुति हमें याद दिलाती है कि आजादी का सूरज केवल रणभूमि की तलवार से नहीं, बल्कि माँ के आंचल, बहनों के साहस और बेटियों के अडिग संकल्प से भी उदित हुआ है। तिरंगे की रक्षा सिर्फ सरहद पर नहीं होती, वो हर उस जगह होती है जहाँ एक नागरिक अपने मूल कर्तव्यों को निभाता है। अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे विद्यालय की आदरणीय सचिव डॉक्टर कृष्णा गुप्ता मैडम को। मैम, हम आपके संरक्षण और दुलार में नित्य नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। कृपया मंच पर आकर हमें अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करने की कृपा करें। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों की इतनी ओजस्वी प्रस्तुति जो हुई है, इतना सुंदर, इतना वीरता, उत्साह, ऊर्जा से भरी प्रस्तुति है, ये हम सबको जो स्वतंत्रता दिवस का जो उद्देश्य है उसको पूरा करता है। क्योंकि आज का जो दिन है, ये बहुत हमारे देश के लिए, हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। क्योंकि हमें आज़ादी मिली, अंग्रेजी गुलामी से मुक्ति मिली, और हम आज का जो दिन है वो हमें याद करना है, स्मरण करना है। जो शहीद हुए, जिन शहीदों के बलिदान को याद करना है, और संविधान, स्वतंत्रता सेनानियों के उत्सर्ग को, उनके त्याग को हमें याद करना है। क्योंकि उनके कारण ही हमको ये स्वतंत्रता मिली है। और आज का दिन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया। उत्साह
हमारी उत्साह और बढ़ गई, क्योंकि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे ही विद्यालय के पूरा छात्र, जो अब इस समय इस प्रदेश के, इस शहर के बहुत ही जाने माने ऑर्थोपीडिस्ट है, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, वो आए अपने बेटर हाफ के साथ, डॉक्टर साक्षी के साथ। ये जो दिवस है, स्वतंत्रता दिवस, एक तो स्मरण करने का दिवस है और साथ साथ संकल्प का दिवस भी है। स्मरण तो हमने किया उनके बलिदान को, उनके त्याग को, जिसके कारण आज हम आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक बने हैं। लेकिन साथ साथ हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है, हमारा भी जो हमारा कुछ अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्य पे फोकस होना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें ये नहीं पूछना है देश हमारे लिए क्या करेगा, हमें ये कहना है कि हम देश के लिए क्या करेंगे। आज हमें इस बात को याद करना है। तो आज याद करने का तो दिन नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे, किसानों को याद करेंगे जो हमारा पोषण कर रहे हैं, और वैज्ञानिकों को याद करेंगे जिनके आविष्कारों ने हमें आज भारत को एक बहुत ऊंचाई प्रदान की है। और हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो भी देश के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा है ना, उन सबको याद करेंगे, उन सबके प्रति हम अपना आभार देंगे। आज की जो प्रस्तुति थी वो तो बहुत ही अद्भुत थी, विलक्षण थी और बहुत सुंदर थी। खास करके जो क्लास 12 का जो इस समय प्रेजेंटेशन था, छावा, हर एक बच्चा जो इसकी कंपेयरिंग कर रहा था, जो डांस कर रहे थे, जो नाटक कर रहे थे, उनका बहुत ही एक अद्भुत प्रस्तुति थी। हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष रहे स्वर्गीय लोकमणि लाल जी, उनका यही मानना था कि भारत का विकास जो है, भारत की प्रगति समर्पित शिक्षण संस्थानों के द्वारा ही संभव है, जिनकी जड़ें हमारी संस्कृति, हमारे वैल्यूज में हो। और एज ए रिजल्ट उन्होंने 1986 में महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर की स्थापना की कि भाई सिर्फ इंजीनियर्स, देश को केवल इंजीनियर्स और डॉक्टर्स नहीं देना है, देश को चरित्रवान नागरिक देना है। Therefore, we believe in a doctor plus a good human being, engineer plus a good human being. Therefore, हम लोग वैल्यू एजुकेशन को बहुत बहुत महत्व देते हैं, जिसके कारण हमारा जो विद्यालय है वो अन्य विद्यालयों से अलग है। हमारे यहाँ एक संगम है, क्योंकि हम वैल्यूज देते हैं, साथ साथ विज्ञान में भी हम पीछे नहीं हैं। जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी साइंस के बढ़ते आयाम हैं, सब बच्चों को यहाँ पर मिलता है। तो बच्चों को संस्कार और संस्कृति के साथ बच्चों को आधुनिक जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स है, सब कुछ बच्चों को यहाँ पर मिलता है। आज मैं मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की का भाषण सुन रही थी मॉर्निंग में, तो उन्होंने ये कहा कि भारत के लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भर भारत को होना जरूरी है। हमें डरना नहीं है किसी की धमकी से, किसी के बुलिंग से, हमें बिल्कुल डरना नहीं है। हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर रहेंगे और आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाते रहेंगे। और उन्होंने जन्माष्टमी को भी याद किया और कहा कि जन्माष्टमी श्री कृष्ण जो कि रोल मॉडल है हमारे भारत के लिए, क्योंकि एक और उनके हाथ में वंशी है जो एक मधुर संगीत और जीवन में मधुरता, जीवन में संगीत, जीवन में उल्लास लाता है, और दूसरी ओर वो सुदर्शन चक्रधारी भी है, क्योंकि वो अनैतिकता, दुष्टता, शैतानियत, हर चीज को वो काटते जाते, इसीलिए तो उनका जन्म हुआ। तो उन्होंने कहा हमारा देश अब एक और मिशन अडॉप्ट करने जा रहा है, वो है सुदर्शन चक्र मिशन। ये क्या है कि हम अपने देश में अपने इंडिजिनस वेपन्स बनाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर
ऑपरेशन सिंदूर के समय देख लिया गया कि कैसे भारत के सैनिक, भारत के नवाज सैनिक, डिफेंस पर्सनल, डिफेंस फोर्सेस, एयर फोर्सेस दुश्मन के घर में घुसकर टेररिस्ट अड्डों को उन्होंने समाप्त कर दिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे देश में हमको यही संकल्प करना है। बच्चों के आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं, नौजवानों की बहुत आकांक्षाएं हैं, इन सबको हमें पूरा करना है। और एक मंत्र जो हमेशा हमें याद रखना है वो है चरई वेदी, बढ़े चलो, कभी रुकना नहीं है और हम आगे ही बढ़ते चले जाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, उसको विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैम ने अभी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। वी ऑल्सो हैव अ पेरेंट विद अस, श्री सोनू जी, प्लीज आप सामने आ जाइए। ही वॉज इन ऑपरेशन सिंदूर और मैंने आज आपको भी इनवाइट किया था। सो प्लीज वी वुड लाइक टू गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ही वॉज, चिल्ड्रन यू कैन गिव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन, एंड he was in Operation Sindoor. He is in the BSF and he is also a parent of Viraj, who is a student of this school. Your inspiring words. Now, I would like to call our Honorable Chief Guest, Dr. Anurag Sir, to come and bless us with his words of wisdom. Respected Krishna ma'am, Raveen sir, Principal Krishna ma'am, यहाँ पर मौजूद सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, dear friends, a very happy Independence Day to all of you. कुछ दिन पहले जब मुझे अल्पना मैम ने ये इन्फॉर्म किया कि मैं यहाँ पर आऊँ एज ए चीफ गेस्ट, तो आई वॉज रियली एक्साइटेड और मैंने बहुत कुछ सोचा था कि आज मैं यहाँ पर पहुँचकर कुछ मन की बातें, दिल की बातें बोलूँगा, कुछ प्रैक्टिस भी की थी ऑफकोर्स, बट यहाँ पर आके मैं इतना नॉस्टैल्जिक हो गया, इतना इमोशनल हो गया कि मुझे कुछ याद ही नहीं कि मैंने क्या सोचा था बोलने के लिए। आज से 25 साल पहले मैं आप ही की तरह उधर बैठा करता था और बहुत क्यूरोसिटी से एक ड्रीम के साथ, एक थॉट प्रोसेस के साथ फ्यूचर की ओर देखता था और सोचता था कि किस तरीके से आगे अपने करियर में मैं एक्सेल करूं, किस तरीके से मेरी लाइफ हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा मेरे लिए उस वक्त, जो कि मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहूँगा, कि मेरे करियर में ही नहीं बल्कि मेरी पूरी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरी सोशल लाइफ पे जो भी मैंने अचीव किया है उसमें इस स्कूल का, यहाँ के टीचर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसा कि कृष्णा मैम ने कहा, सिर्फ एकेडमिक्स ही सब कुछ नहीं है। पढ़ाई तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही किसी भी स्कूल में, लेकिन पढ़ाई के साथ जो कल्चरल वैल्यूज, जो कॉन्फिडेंस, जो अदर एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट हम यहाँ पर गेन कर रहे हैं, इन माय ओपिनियन प्रयागराज के और किसी भी स्कूल में वो नहीं है।
beyond any doubt, we are sitting and we are reading and we have read in the best school of Prayagraj and around. There is no doubt about it. So, as you all know that life is long and schooling उसका एक बहुत इनिशियल छोटा सा पार्ट होता है. So in order to achieve success in life, foundation is laid here, but determination, the ability to dream big, perseverance is learned from the school only. Life is not a 100-meter sprint, it's a marathon. So, मुझे ऐसा लगता है कि actually, frankly, and I am admitting it, I don't think कि मैं स्कूल में क्लास में बेस्ट परफॉर्मर था academically या टॉपर था, और ऐसा होता है. Everyone cannot be a topper, right? So many a times हम लोग कभी खुद के परफॉर्मेंस से, कभी दूसरे के परफॉर्मेंस से स्ट्रेस में आ जाते हैं. हम लोग अक्सर बात करते हैं पेरेंट्स की, टीचर्स की, इस स्टूडेंट में, इस लड़के में, इस लड़की में बहुत टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज अ फेमस कोट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट when talent doesn't work hard. The only and the most important thing that you need to have at this point of time in your life is discipline. Student life में and आगे भी discipline एक मात्र ऐसी क्वालिटी है, अगर आपने उसको अपने अंदर डेवलप कर लिया, no one can stop you ever from achieving success. डिसिप्लिन क्या है? हम सब जानते हैं इस वर्ड के बारे में. डिसिप्लिन इज अबाउट डूइंग राइट एवरी टाइम, एवरीवेयर, इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग. दिस इज डिसिप्लिन. हम सब जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन हम उसे करते नहीं, कर नहीं पाते. हम जानते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी है, हम जानते हैं कि हमें किस तरीके से करना चाहिए, हमें टाइम कहाँ वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, हमको एक अच्छी लाइफस्टाइल रूटीन लेना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए. वी ऑल नो एवरीथिंग. ये सब हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं, बट करते नहीं. इसको करना ही डिसिप्लिन है, राइट? तो मैं चाहूँगा कि आप सभी हार्ड वर्क करें, डिसिप्लिन से करें, अच्छे स्टूडेंट बने, अच्छे प्रोफेशनल बने. आप किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे मेडिकल फील्ड में आए, इंजीनियरिंग में, आप लॉयर बने, सीए बने, आप कृष्णा, तुम सही कहते हो. आप आर्म फोर्सेस में जाएं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, wherever you go, be a good professional, be a good citizen, always try to help someone, and this is all what I have to say. Last thing I want to say that you always want to give back to the society, because whatever we have achieved, whatever we have gained is from the society only. And आज मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, जो बच्चों ने परफॉर्म किया, और इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए, इतने मोटिवेशनल प्रोग्राम के लिए यहाँ के हर एक परफॉर्मर, उसको सिखाने वाले हर एक टीचर, यहाँ पे आए हुए सभी पेरेंट्स का मैं चाहता हूँ कि हम सब खड़े होकर के जोरदार तालियों से प्रोत्साहन करें. तालियां आप सबके लिए हैं.
कृष्णा मैम, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि स्कूल में तो मैं पहले एज ए स्टूडेंट आता था, आज मैं बिल्कुल भी यह नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं चीफ गेस्ट हूँ। मैं यहाँ का स्टूडेंट था, आपका हमेशा था और आगे भी रहूँगा। आपकी ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा मिली है। एंड इफ आई कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, इफ आई कैन हेल्प इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी, भगवान ना करे ऐसा हो, बट दिस इज माई प्रोफेशन, सो आई हैव टू से दिस। मैं कभी किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर, किसी भी पेरेंट के कभी भी किसी के काम आ सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप मुझे हमेशा प्लीज एक मौका कभी अगर याद करें तो मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल नाउ। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबकी वजह से ही हूँ और यह मैं हमेशा याद रखूंगा मैम। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। उन्होंने डॉक्टर अनुराग अग्रवाल को सुन ही लिया और आप देख ही लिए कि किस तरह के डॉक्टर हैं, किस तरह का उनका अप्रोच है टू लाइफ, क्या एटीट्यूड है। सो वी आर वेरी प्राउड दैट वी हैव बीन एबल टू गिव टू द सोसाइटी अ डॉक्टर लाइक हिम, a sensitive, compassionate, good human being like this. Who's an expert professional in history, at the same time a person with values, a person who believes with compassion. ये बहुत important है। और एक और चीज़ मैं यहाँ अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, जो योगा परफॉर्मेंस हुआ था, इतने टफ आसन्स, इतने डिफिकल्ट आसन्स, every आसन was so difficult, but was so beautifully presented by our students. So I would really congratulate the yoga instructor and the yoga performers, because आप वाकई में महर्षि पतंजलि जो जिसके नाम पर हमारा विद्यालय है, उसके ट्रेडिशन को आप आगे बढ़ा रहे हो। So thank you all so much, and the parents of course, आप ही के कारण, आप ही के सपोर्ट के कारण, आपके कोऑपरेशन के कारण हम इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित कर लेते हैं। I would request Krishna ma'am to provide Dr. Anurag sir with a memento. Guests, respected principal, coordinators, and dear teachers, as we come to the close of today's celebration, it's my privilege to express our heartfelt gratitude. First and foremost, we thank our chief guest for gracing us with his presence and inspiring words that truly awaken the spirit of patriotism in our hearts. A heartfelt gratitude to our beloved Krishna Gupta ma'am and Ravindra sir, without whose support this program could not be a grand success. We are grateful to our principal, coordinators, teachers for their constant guidance, support and encouragement. A sincere thanks to all the participants. Your performances carry the essence of unity, sacrifice, freedom that our Independence Day stands for. Thank you everyone for your time, attention and enthusiasm. Let us take the spirit of today beyond these grounds by respecting our freedom, fulfilling our duties and working together for a better India. Independence is not just a date. It is a reminder of responsibilities we hold as citizens to make India a stronger, fairer and brighter one. Now, I would request everyone to kindly stand up for the national song.